Dear students, I am Dr. Rohini Singh from Government College Chachrauli, Yamunanagar. I am presenting the topic Biotic Interaction for the students of Botany BSc final year. What are biotic factors? In ecology, you have studied various factors like climatic factors, edaphic factors, topographic factors. Today we will study biotic factors. Biotic factors are the interactions between living beings in the ecosystem. The organisms live together, influencing each other's life directly or indirectly. Various vital processes like nutrition, reproduction, etc. depend upon such interactions of the individuals of same species or between the members of different species. You have seen pollination, seed dispersal, fruit dispersal in nature. All these are common examples of such biotic interactions. These interactions may be temporary or for whole life. They may be beneficial, harmful, or neutral for one or both the organisms. In the process of interaction, the organisms may be in close contact with each other or interact from distance. Let us see the categories of biotic factors. Biotic factors may be conjunctive or disjunctive. If there is no close contact between the interacting species, means अगर दो species दूर से एक दूसरे के साथ interact कर रही हैं, we call it as disjunctive type of biotic factor. If the species interacting together are in close contact with each other, we call it as conjunctive. There are various types of further two disjunctive and conjunctive types. We will study each and every one by one. Types of biotic interactions. Now, the plants growing in a community, they may interact with each other. The plants and microorganisms growing in a community may interact with each other. These interactions may occur between plants and animals, between plants and humans. We will see all of them one by one. As I told you, biotic interactions में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक स्पीशीज के लिए फायदेमंद हो सकती है या नुकसानदायक हो सकती है या वो न्यूट्रल भी हो सकती है. तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस में हम कौन से स्टडी करेंगे? प्रोटोकोऑपरेशन, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म. नेगेटिव इंटरेक्शंस में वी विल स्टडी पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, अमेंसलिज्म, competition. These are the type of interactions showing effect on the species. Like in competition, both the species they mutually inhibit each other. In commensalism type of interaction, one species is benefited and another is unaffected. Amensalism में एक स्पीशीज को नुकसान है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, वो unaffected है. In proto-cooperation, both the species are mutually benefited. But this type of interaction is not obligatory. I'll explain you in further slides. In mutualism, again, this is mutually beneficial type of interaction between the two species, but here interaction is obligatory. In parasitism, one species is benefited and another is harmed. In predation, one is benefited, again another one is killed. These are the type of interactions along with their example. You may see in mutualism, both these are happy because both are being benefited. In case of commensalism, this species is benefited and this remains unaffected. In case of parasitism, this is benefited and this one is harmed. Similarly, in predation, this species is benefited and this species is killed. As you may see in the diagram, one species is killed, another one is getting its food from this. In case of amensalism, one is in loss, it is harmed, and other remains unaffected. I will show you the example in amensalism slide. In competition, both are mutually inhibited, right? In proto-cooperation, both the species are mutually benefited. So we will study first positive interactions.
So those interactions in which both or either one species is benefited but neither is harmed. Here the important point is that no one of the organism is harmed. किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा, एक स्पीशीज को या दोनों स्पीशीज को फायदा है इस तरह की इंटरेक्शन से. तो इस तरह की इंटरेक्शंस पॉजिटिव इंटरेक्शंस कहलाती हैं. Types of positive interactions are mutualism, commensalism, proto-cooperation. So we will study first mutualism. So it is a kind of positive interspecific interaction in which both the species are mutually benefited. Like species A is also benefited, species B is also benefited. This type of interaction is permanent and obligatory. What is the meaning of obligatory here? Means this type of interaction is essential for survival of both. अगर ये interaction नहीं होगी आपस में इन दोनों organism की तो वो survive नहीं कर सकते और ये interaction throughout the life रहेगी, for whole of the life. So this type of interaction is permanent and obligatory. We have lot many examples of mutualism in nature. Mutual interaction may occur within plant species. It may occur between plants and microbes. We have various examples where plants and animals are mutually interacting with each other and where animals and microbes are mutually interacting with each other. Let us study first mutual interaction between plant species. The best example and unique example of mutualism is lichens. You have studied in your lower class that algae and fungi are closely integrated with each other. They form entirely different organism that is known as lichen. Algal partner constitutes the bulk of the lichen thallus and performs photosynthesis. Food synthesized by algae is also used by fungus, and fungus in return it helps in protection, in fixation of the lichen thallus and in absorption of water and minerals from the substratum. These are the pictures of lichen. You must have seen them in your lower classes. Another example of mutualism is mycorrhizae. This is the symbiotic association between fungal hyphae and roots of higher plants. Roots provide food and shelter to the fungus. Fungus in return helps in absorption of water and minerals. तो इस तरह से दोनों को फायदा हो जाता है. जो हायर प्लांट की रूट्स हैं वो फंजाई को फूड और शेल्टर देती हैं रहने के लिए और फंजाई इन रिटर्न उनको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है जिनको यूज करके हायर प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं. माइकोराइजा की कई टाइप्स हैं. एक्टोमाइकोराइजा जब फंगल हाइफा रूट के बाहर सरफेस के ऊपर रहता है, पाइनस में आपने ये स्टडी किया है. एंडोमाइकोराइजा में फंगल हाइफी रूट्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है. वॉलनट एंड रेड मैपल आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ माइकोराइजी. इन पेरिट्रॉफिक माइकोराइजी फंगल हाइफी पूरा क्लस्टर बना देते हैं रूट के बाहर से, पूरा उसको जो है सारी तरफ से उसको क्लस्टर कर देते हैं. स्प्रूस में इस तरह की माइकोराइजा मिलते हैं. एंड लास्ट वन इज वेसिकुलर arbuscular mycorrhiza. इसमें जो हाइफी हैं वो अंदर पेनिट्रेट करते हैं, रूट्स के कॉर्टिकल सेल्स में चले जाते हैं और वहां जाकर के वो वेसिकल्स या arbuscules जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं. आई विल शो यू इन द डायग्राम. दिस इज द diagram showing ectomycorrhiza. You may see here in this slide the fungal hyphae, they are growing outside the root surface. Right? In ectoendomycorrhiza, the fungal hyphae, they are penetrating in the cortical cells. And in arbuscular mycorrhiza, you may see like this is vesicle is formed by fungal hyphae inside the intercellular spaces or inside the cortical cells. Similarly, arbuscules are formed. Right? This is again ectomycorrhiza. You may see that a mantle type, fungal mantle type is formed outside the root surface. And in arbuscular mycorrhiza, the fungal hyphae, they penetrate inside the structure. You may see the highlighted diagram here. Arbuscules are like this and these are the vesicles. So this is the arbuscular vesicular type of mycorrhizae. This is the diagram of root of higher plants and the hyphae of fungal hyphae. They enter inside
they form arbuscules, they form vesicle type of structure in the root cells. Now म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड माइक्रोब्स. अभी हमने कौन सा पढ़ा कि प्लांट्स के बीच में जो लाइकन और माइकोराइजा थे वो एग्जाम्पल किसके थे, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट स्पीशीज. अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड माइक्रोब्स. तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरेक्शन, जिसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के साथ में, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं. बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं और वो उस प्लांट से शेल्टर ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं और इन रिटर्न उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं. अदरवाइज प्लांट फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाता. तो इस तरह से प्लांट्स को क्या फायदा हो जाता है, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट है, उसको शेल्टर मिल जाता है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है. दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज symbiosis. Roots of leguminous plants may develop nodules in which reside soil bacteria rhizobium that does symbiotic nitrogen fixation. You may see in this diagram, these are the nodular structure. Here the microorganism get shelters and they fix atmospheric nitrogen which is obtained by plants. Such association is also found in non-leguminous plants. जरूरी नहीं है कि सिर्फ leguminous plants में मिलेंगे. Alnus, Casuarina, इस तरह के जो non-leguminous plants हैं उनमें भी इस तरह की association देखी जा सकती है. This type of association is also found in Anthoceros. Anthoceros क्या है, ब्रायोफाइट है. आपने जिम्नोस्पर्म्स में साइकस में कोरोलॉइड रूट पढ़ी है, तो एंथोसेरोस और साइकस के कोरोलॉइड रूट में नॉस्टॉक जो है, जो कि साइनोबैक्टीरिया है, वो अंदर एंटर कर जाता है और वो वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और प्लांट को बदले में नाइट्रोजन मिल जाती है. तो इस तरह से ये दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिटेड एक फिनोमिना है, इंट्रैक्शन है. Next is mutualistic interaction between plants and animals. After plants and microbes, we will study now interaction between plants and animals. So, mutualism between Zoochlorella and Paramecium. Zoochlorella एक एल्गा है जो कि पैरामीशियम के अंदर रहता है. ये पैरामीशियम की बॉडी है. इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर ये जूक्लोरेला नाम का एक एल्गा इसके अंदर रहता है. तो दोनों एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं. Similarly, interaction between plants and animals, mutualistic interaction between plants and animals. We have heard fungal gardens. Fungal gardens क्या होते हैं? कई बार कुछ आंट्स या टर्माइट्स वो फंगल गार्डन्स प्रोड्यूस करती हैं. एग्जाम्पल इसमें आटा जीनस है. आटा जीनस जो है उसके जो आंट के जो वर्कर्स हैं, जो वर्क कम्युनिटी में उसमें डिवाइडेड होता है, क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं. तो उसमें जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रीन लीव्स जो है अपने नेस्ट में, जो भी उनका जो है हुड है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे वो ग्रीन लीव्स को च्यू करते हैं और उसके बाद में वो उसको वॉमिट करते हैं. तो उसके बाद वो सारा एक पल्पी मास बन जाता है जिसको जो है वो नेस्ट में एज ए बेड की तरह से नीचे बिछ जाता है वहां पे. तो ग्रीन लीव्स का जो पल्पी मास है वो नीचे सरफेस के ऊपर वो जो है बिछ जाता है बिल्कुल, और वहां पे जो फंगस रेजाइटस है वो वहां ग्रो करता है. ये फंगस है रेजाइटस, ये उस बेड के ऊपर पल्पी मास के ऊपर ग्रो करता है. तो these ants also secrete proteolytic enzymes that are used by fungus to degrade the excreta of ants that is used as food by fungus. तो ये फंगस फूड की फॉर्म में क्या लेता है, जो ants का एक्सक्रीटा है उसको जो है ये ऑब्टेन करता है फॉर एज फूड. और जो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो ants रिलीज करती हैं वो एंजाइम्स फंगस यूज करता है इस एक्सक्रीटा को ब्रेक डाउन करने के लिए, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए. तो इस तरह से फंगस को फूड मिल जाता है और जो आंट्स हैं उनका एक्सक्रीटा जो है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है. नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स में दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास जूफिली. अभी हमने ये पीछे पढ़ा फंगल गार्डन बिटवीन plants and animals.
अब हम पढ़ रहे हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स में दूसरा एग्जाम्पल जूफिली। आपने सभी ने पॉलिनेशन स्टडी की है अपनी लोअर क्लास में। तो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मॉथ्स, squirrels, bats, these are all example of mutualism, because in most of the cases shapes of flowers are designed in accordance with the shapes of mouth parts of these pollinators like birds. You may see in this example, देखो इसकी जो है बीक जो है काफी पतली लंबी बीक है। सिमिलरली जो फ्लावर की शेप जिसमें जो है जाकर के ये नेक्टर वगैरह ऑब्टेन कर रहा है, तो उस फ्लावर की शेप भी बिल्कुल वैसे ही लंबी और ट्यूबुलर टाइप की है। तो इस तरह से जो है ये दोनों का जो डिजाइन है वो उनकी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो उनके इंटरेक्शंस पे जो है बेस्ड है। तो जूफिली इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। Another example of mutualistic interaction between plants and animal is yucca. युक्का प्लांट और युक्का मोथ के बीच में जो इंट्रैक्शन है, युक्का प्लांट एंड इट्स पॉलिनेटर, इसकी पॉलिनेशन जो है एक पर्टिकुलर मॉथ करता है जिसका नाम युक्का मॉथ ही उसको जो है बोला जाता है। तो युक्का प्लांट और युक्का मॉथ जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो मॉथ है वो एग्स ले करता है युक्का फ्लावर की ओवरी के अंदर, और इसके जो लार्वी हैं वो उस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो ओव्यूल्स वगैरह हैं उनके ऊपर वो फीड करता है। युक्का प्लांट डिपेंड अपॉन द युक्का मोथ फॉर पॉलिनेशन। तो दोनों में क्या इंटरेक्शन है, युक्का प्लांट को तो पॉलिनेशन के लिए युक्का मोथ चाहिए, और युक्का मोथ को एग लेइंग के लिए और लार्वी के फीड के लिए इस फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस, इस प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस चाहिए। तो इस तरह से दोनों में म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है। Another example of mutual interaction between plants and animals is zoochory. आपने देखा एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे जो हैं फूड लेते हैं प्लांट से, जो है फ्रूट्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद में इनके जो सीड्स हैं उनको इधर उधर डिस्पर्स कर देते हैं। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज जूकोरी। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स इज नोन एज जूकोरी। तो सम सीड्स दे हैव हार्ड सीड कोट, कई बार जो है सीड्स बहुत इजीली जर्मिनेट नहीं कर सकते अपने आप से क्योंकि उनके सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो वंस दे पास थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स दे आर एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम्स देयर। जब वो जो है कोई भी उनको बर्ड या एनिमल उनको खाता है तो उस एनिमल के या बर्ड के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इस सीड कोट के ऊपर एक्ट करते हैं, इस सीड कोट को डिकम्पोज करते हैं, और जब ये सीड एक्सक्रीटा में, इन बर्ड्स या एनिमल्स के एक्सक्रीटा में रिलीज होता है तब जाकर के ये जर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि उसका हार्ड कोट जो है वो अब खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स ऑफ दीज एनिमल्स। Another type of positive interaction is commensalism. I told you in positive interaction one species is benefited and another one either it remains unaffected or it is also benefited, पर नुकसान नहीं होगा उनमें से किसी को भी। तो कमेंसलिज्म इसी तरह की एसोसिएशन है जिसमें स्पीशीज ए को तो बेनिफिट हो रहा है और स्पीशीज बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, पर उसको नुकसान भी नहीं हो रहा कोई। तो इस तरह की जो म्यूचुअलिज्म था उसमें क्या था, दोनों को फायदा हो रहा था, यहाँ दोनों में प्लस साइन था। कमेंसलिज्म में यहाँ प्लस साइन है क्योंकि इसको फायदा हो रहा है और इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए ये कमेंसलिज्म, इसको हम जीरो से शो करते हैं, मींस इट इज अनअफेक्टेड। तो बेस्ट एग्जांपल इज एपीफाइट। एपीफाइट्स जो हैं दे आर स्पेशल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स विदाउट टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। राइट, दिस इज, यू मे सी इन दिस डायग्राम, ये एपीफाइट है, ये एक प्लांट का लॉग है, एक प्लांट है, ट्री है, उसके ऊपर ये दूसरे प्लांट्स ग्रो करेंगे। बहुत सारे प्लांट्स आप देख सकते हो, दे आर ग्रोइंग ऑन दिस प्लांट, और इसकी जो रूट्स हैं वो एयर में हैंग करती हैं। तो इन रूट्स के अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, विलामेंट जिसको आप बोलते हैं, ये मॉइस्चर ऑब्टेन करता है एयर से। तो ये जो है स्पेशल टाइप का फिनोमिना, दिस इज नोन एज कमेंसलिज्म। यहाँ इस प्लांट को फायदा क्या हो रहा है, इसको रहने के लिए यहाँ से शेल्टर मिल रहा है, राइट, पर ये कोई इससे न्यूट्रिशन नहीं ले रहा और इस प्लांट को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह की एसोसिएशन क्या कहलाती है, कमेंसलिज्म। दूसरा एग्जाम्पल कमेंसलिज्म का लियाना, आपने फॉरेस्ट में कभी अगर ध्यान से देखा हो, कई बार जो है वुडी क्लाइंबर वो दूसरे ट्रीज के ऊपर जो है उसके ऊपर घूमते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नीचे रहेंगे तो उनको लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो
सनलाइट को हाइड कर लेते हैं अपनी कैनोपी की वजह से। तो जब जो ये वुडी क्लाइंबर्स हैं, ये दूसरे ट्रीज के ट्रंक के ऊपर क्लाइंब करते हैं, ट्विनिंग करके उसके ऊपर जो है वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं, तो उनके ऊपर जो ग्रीन लीव्स हैं इन क्लाइंबर्स की, उनको प्रॉपर सनलाइट मिल जाती है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये प्लांट सिर्फ यहाँ से जो ये वुडी क्लाइंबर जो ऊपर दिखाया है, ये इस होस्ट प्लांट से, होस्ट नहीं कहेंगे इसको, सपोर्टिंग प्लांट कहेंगे, इससे ये सिर्फ वो ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ये कोई जो है मिनरल या कुछ भी जो है इससे नहीं ले रहा, इसकी अपनी रूट सॉइल में है और ये प्योरली ऑटोट्रॉफिक प्लांट है। तो इस तरह की एसोसिएशन क्या कहलाती है? कमेंसलिज्म, जिसमें जो है इस प्लांट को कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं हो रहा, पर इस वुडी क्लाइंबर को फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर तक पहुंच जाता है और उसको प्रॉपर सनलाइट मिल जाती है। अनदर फिनोमिना इज प्रोटो कॉपरेशन, जहाँ पे दोनों में जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन है, बट द मेन थिंग इज दिस इज नॉन ऑब्लिगेटरी। यहाँ पे जो है नॉन ऑब्लिगेटरी क्यों है? क्योंकि ये एसोसिएशन एसेंशियल नहीं है दोनों के सर्वाइवल के लिए। प्लीज माइंड द डिफरेंस। म्यूचुअलिज्म में क्या था? दोनों के बीच में जो एसोसिएशन थी, जो इंटरेक्शन थी, दैट वाज ऑब्लिगेटरी, दैट वाज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। पर यहाँ जो इनकी इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन है, बट वो नॉन एब्लिगेटरी है, इट इज नॉन एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ द स्पीशीज। Some microbes occur on the surface of root or leaves of higher plants। ठीक है, रूट्स और लीव्स के ऊपर कुछ माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और वो वहाँ पे कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स लाइक शुगर और अमाइनो एसिड वगैरह जो हैं वो रूट्स या लीव्स इस तरह के कुछ जो है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स रिलीज करती हैं, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं? वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। पर ये दोनों ही, अब इसको क्या फायदा हो रहा है? माइक्रोब्स को रहने के लिए जगह मिल रही है, शुगर्स मिल रही हैं, अमाइनो एसिड मिल रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स के रूट्स या लीव्स में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और इन प्लांट्स को क्या फायदा हो रहा है? जब ये माइक्रोब्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं तो इन प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो फेवरेबल होती है, और जो है साथ ही में जो है जो ये प्लांट्स हैं ये पैथोजन से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अब ये एसोसिएशन जो है कंपलसरी नहीं है, दोनों के लिए एसेंशियल नहीं है। अगर नहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो करेंगे रूट्स या लीव्स के ऊपर, तो भी प्लांट ग्रो करेगा, और जो है वो माइक्रोब जो है वो कहीं और भी ग्रो कर सकता है, सिर्फ इसी प्लांट की रूट के ऊपर नहीं उसको ग्रो करना। तो दोनों के लिए एसेंशियल नहीं है ये जो एसोसिएशन है, इसलिए इस तरह की एसोसिएशन क्या कहलाती है? प्रोटो कॉपरेशन। दिस इज नॉन ऑब्लिगेटरी। अनदर एग्जाम्पल है सी एनिमोन, एक सिलेंट्रेटा है, जो क्या करता है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हर्मिट क्रैब है, ये हर्मिट क्रैब के शेल के ऊपर ये सी एनिमोन अटैच हो जाता है। अब ये जो क्रैब है ये इसको सी एनिमोन को फ्रेश फीडिंग साइट पे, जहाँ अच्छा खाना मिल रहा है वहां ले जाता है इसको, और क्रैब को बदले में क्या फायदा होता है? ये प्रोटेक्टेड रहता है एनिमीज से, क्योंकि इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर सी एनिमोन ग्रो कर रहा है, तो सी एनिमोन जो है को देख करके जो एनिमीज हैं वो हर्मिट क्रैब के ऊपर अटैक नहीं करती। तो इस तरह से दोनों को फायदा होता है, पर जरूरी नहीं है कि इन्होंने हमेशा इसी एसोसिएशन में रहना है। दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर। Now we come to negative interactions. In case of negative interaction, either one or both the species are harmed. एक को या दोनों को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की इंट्रैक्शंस में प्रिडेशन, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म और कंपटीशन आते हैं। वी विल स्टडी वन बाय वन। लेट अस सी फर्स्ट प्रिडेशन। It is the interspecific interaction in which one species called predator, जो दूसरे को खाती है, किल करती है फूड की फॉर्म में, और जिसको मारती है, खाती है, वो स्पीशीज क्या कहलाती है? प्रे। तो स्पीशीज वन जो प्रीडेटर है वो बेनिफिटेड रहती है, और स्पीशीज बी जो किल्ड हो जाती है, जिसको हम प्रे कहते हैं, वो जो है नुकसानदायक स्पीशीज, जिसको नुकसान हो रहा है। तो एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स दे मे एक्ट एज प्रीडेटर। तो फर्स्ट वी विल सी एनिमल प्रीडेटर्स। एनिमल प्रीडेटर कौन से हैं? दे में बी हर्बीवोरी, दे में बी कार्निवोर। हर्बीवोरी में कौन से? काउ, गोट वगैरह, ये जो है प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवरी जो लायन और टाइगर को खाते हैं। ऑमनिवरी जैसे आंट और कॉकरोच, वो दोनों प्लांट्स और एनिमल को खाती हैं। और कैनिबलिज्म जिसमें जो है अपनी ही स्पीशीज के इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म खाता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स में से ये काउज वगैरह ये सारे जो हैं ये घास खा रही हैं, तो ये क्या है? हर्बीवोरी टाइप की प्रेडेशन है। कार्निवोरी जिसमें जो है एनिमल्स के ऊपर, एक एनिमल स्पीशीज दूसरे जो है एनिमल के ऊपर अटैक करती है। देन इज ऑमनिवरस, इसमें आंट का एग्जाम्पल जो है बेस्ट एग्जाम्पल, जो कि प्लांट्स को भी खा सकता है और एनिमल्स को भी खा सकता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रेडेशन इज नोन एज ऑमनिवोरी।
अनदर इज कैनिबलिज्म, जिसमें जो है लॉयन जैसे ऑर्गेनिज्म वो जरूरत पड़ने पे अपनी ही स्पीशीज के इंडिविजुअल को खा जाते हैं। प्लांट्स भी कुछ जो हैं प्रेडेटर्स की तरह से होते हैं, जैसे कुछ फंजाई हैं वो वॉर्म्स वगैरह के आसपास रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना देती हैं और धीरे धीरे जो है फिर वो इन वॉर्म्स को खा जाती हैं। तो फंगस यानी कि जो है ये फंजाई के जो है हाइफी वो इस तरह से वॉर्म्स को ट्रैप करके खा जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट प्रेडेटर इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये वो प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, क्योंकि इनकी सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी करते हैं, इंसेक्ट्स को किल करते हैं और उनसे जो है अपनी नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है निपेंथस पिक्चर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप, राइट, ये सनड्यू प्लांट, अट्रिकुलेरिया ब्लैडर वॉट जिसको बोलते हैं, ऑल दीज आर एग्जाम्पल। निपेंथस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये आप देख रहे हैं, इसमें जो है ये मॉडिफाइड लीफ है जिसमें ये स्ट्रक्चर लेमिना है, ये लंबा सा जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये मॉडिफाइड जो है पिट्योल है इसका और टेंड्रिलर फॉर्म में, ये लीफ लेमिना है और ये लीफ एपेक्स है जो कि एक लिड की तरह से बन जाता है। अब इसमें जो रिम है इसका, ये जो रिम है यहाँ पे जो है बहुत सारे नेक्टरी ग्लैंड्स होते हैं और ये ब्राइट कलर का जो है होता है, रेड कलर का, बहुत ब्यूटीफुल जो है। तो ये इंसेक्ट्स जो है अट्रैक्ट होकर के इसके पास आते हैं। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ रिम के ऊपर आकर के सेटल होता है, क्योंकि ये स्लिपरी होता है नेक्टर की वजह से, तो वो इंसेक्ट अंदर गिर जाता है और जब वो अंदर गिरता है तो जो इस पिक्चर के अंदर इस घड़े टाइप के सुराही टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर जो है नीचे की साइड में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, वो कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। तो जब ये इंसेक्ट अंदर गिरता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम उस इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं और उसमें से जो है सारे नाइट्रोजन और इस तरह के जितने भी मिनरल्स हैं उनको रिलीज कर देते हैं, जो कि प्लांट ऑब्टेन करता है। तो इस तरह से जो इंसेक्ट की प्रोटीन्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन टू अमाइनो एसिड एंड दीज आर यूज्ड बाय द वॉल्स ऑफ द पिक्चर। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ये प्लांट्स ग्रो करते हैं और इंसेक्ट को किल करके अपनी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करते हैं, इसलिए इस तरह के प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज अमेंसलिज्म। ये एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन है जिसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, कॉन्वोल्वुलस एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है, तो वो उस अपने आसपास वीट प्लांट को ग्रो नहीं करने देता। तो इसको जो है कोई जो है वीट प्लांट को तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है और इसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बस इसको क्या है कि अपने पास जो है स्पेस प्रॉपर मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जैसे क्लोरेला बैक्टीरिया जो है वो डायटम्स की ग्रोथ को चेक करता है। तो इस तरह की इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है या डायरेक्ट उसको कोई बेनिफिट नहीं होता, इस तरह की इंटरेक्शन क्या कहलाती है, अमेंसलिज्म। अनदर वन इज पैरासिटिज्म। इसमें जो है ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से पार्शियली या फिर कंप्लीटली। तो पैरासाइट्स जो हैं वो फिजिकल कांटेक्ट बना करके रखते हैं होस्ट प्लांट से। तो जो पैरासाइट जो है वो किसी होस्ट प्लांट से जब न्यूट्रिशन लेता है तो हॉस्टोरिया या शक्कर जैसे जो है कुछ उससे स्ट्रक्चर वो बनाता है जिनसे वो न्यूट्रिशन लेता है। बट प्रीडेटर और पैरासाइट में मेजर डिफरेंस क्या है, जो प्रेडेटर है वो तो क्या कर देता है, अपने प्रे को किल कर देता है, बट पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट को किल नहीं करता जब तक उसका अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता। पैरासाइट एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं अगर वो होस्ट के बाहर सरफेस पे रह रहे हैं, वो एंडोपैरासाइट हो सकते हैं अगर वो अंदर चले जाते हैं। अब पैरासाइट जो है वो लिविंग होस्ट में अगर रह रहा है तो उसको ओब्लिगेट कहते हैं, बट कई बार क्या होता है कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जब उनको अपना लिविंग होस्ट नहीं मिलता है तो वो लिविंग होस्ट की एब्सेंस में सेप्रोफाइट यानी डेड होस्ट के ऊपर भी वो ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह के पैरासाइट्स को फैकल्टेटिव पैरासाइट्स बोलते हैं। होलो पैरासाइट जब जो है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है वो होस्ट से लेता है, जैसे कस्क्यूटा, अमरबेला आपने सबने देखी है, ये पूरी न्यूट्रिशन जो है होस्ट प्लांट से लेता है, तो इसको होलो पैरासाइट कहते हैं। पार्शियल पैरासाइट जो क्या करते हैं, सिर्फ वाटर और मिनरल ऑब्टेन करते हैं होस्ट से और अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। इस तरह के पैरासाइट्स क्या कहलाते हैं, पार्शियल पैरासाइट्स।
कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो रूट पे अटैक करते हैं, वो जाइलम वगैरह के साथ में, फ्लोएम के साथ में, रूट की जाइलम और फ्लोएम के साथ में कांटेक्ट बना लेते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो स्टेम पैरासाइट है वो स्टेम के ऊपर अटैक करते हैं और वो स्टेम के जाइलम और फ्लोएम के साथ में कांटेक्ट बनाते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। फर्दर ये दोनों ही टाइप्स, रूट पैरासाइट और स्टेम पैरासाइट, ये टोटल पैरासाइट भी हो सकते हैं, पार्शियल पैरासाइट भी। टोटल रूट पैरासाइट अगर है तो रेफ्लिसिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। पार्शियल रूट पैरासाइट में सेंटेलम, थीजियम टाइप के प्लांट्स हैं। सिमिलरली टोटल स्टेम पैरासाइट एज आई टोल्ड यू कस्क्यूटा, और पार्शियल स्टेम पैरासाइट में विस्कम, लोरेंथस, ये सारे एग्जांपल हैं। दिस इज स्टेम पैरासाइट, अमरबेल मैंने अभी आपको दिखाया। ये रूट पैरासाइट, ये रेफ्लिसिया प्लांट है जिसमें जो सबसे बड़ा फ्लावर जो होता है एंजियोस्पर्म्स में, ये जो है रूट्स के ऊपर अटैक करता है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। तो इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज व्हेन बोथ यूटिलाइज अ कॉमन रिसोर्स, एक ही रिसोर्स के लिए जब दोनों में झगड़ा हो रहा है तो इस टाइप की इंट्रैक्शन क्या कहलाती है? कंपटीशन। तो दोनों एक दूसरे से compete करते हैं। अब ये रिसोर्स जो है ये लाइट हो सकता है, वाटर, मिनरल, स्पेस या मेटिंग पार्टनर, किसी भी तरह के रिसोर्स के लिए दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेम स्पीशीज के वो compete कर सकते हैं। और दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। अगर सेम स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में कंपटीशन है तो इंट्रा स्पेसिफिक है, और अगर डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में है तो इट इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक। जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है इट इज मोर स्फीयर, व्हाई? बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड सेम है दोनों ऑर्गेनिज्म की, तो वो उनके बीच में कंपटीशन ज्यादा टफ होगा। इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच में भी बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ हैं, बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम रिफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट लगाते हैं, बहुत सारी प्लांटेशन करते हैं, सॉइल को कंजर्व करते हैं, यूजफुल प्लांट्स को ग्रो करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑल दीज आर बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ डन बाय ह्यूमंस। बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी हार्मफुल एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस, लाइक हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज या रेजिडेंशियल एरिया बनाने के लिए बहुत सारा फॉरेस्ट काट देते हैं। ऐसे जब ह्यूमन इन्वेडर्स आते हैं किसी जगह पे आकर के जो है किसी कॉलोनी पे जाकर के अटैक करते हैं, तो वो ह्यूमन हैबिटेशन को डिस्ट्रॉय जब करते हैं तो साथ साथ वो वहाँ की वेजिटेशन को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। सिमिलरली हंटिंग जो है, हंटिंग करते हैं हम, तो हंटिंग से क्या होता है, कार्निवोरस एनिमल्स की ज़्यादातर हंटिंग की जाती है, तो उससे क्या होता है, कार्निवोरस एनिमल्स का नंबर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर्बीवोर्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। भाई हर्बीवोर्स को खाने के लिए कार्निवोर्स जब नहीं बचेगा तो हर्बीवोर्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो हर्बीवोर्स, फॉर एग्जाम्पल आपने लॉयन को मार दिया, अब लॉयन जो है वो डियर को खा रहा था या जो है गोट वगैरह को खा रहा था, अब लॉयन की एब्सेंस में क्या होगा, गोट और डियर का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो जब इनका नंबर, हर्बीवोर्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन के ऊपर अटैक करेंगे, उसको खाएंगे, तो इस तरह से वेजिटेशन का लॉस होता है। ओवर ग्रेजिंग, हम अपने एनिमल्स वगैरह के साथ एनिमल्स को छोड़ देते हैं खुले में, वो जो है ओवर ग्रेजिंग करती हैं और फिर इस तरह से जो सॉइल के ऊपर से लेयर जो है वेजिटेशन की खत्म हो जाती है, तो सॉइल इरोजन होता है। स्क्रैपिंग करते हैं हम, ग्रास को रिमूव कर देते हैं। फ्यूल के लिए जो है, फ्यूल वुड के लिए, पेपर के लिए हम फॉरेस्ट काटते हैं। और कुछ जो है पॉल्यूटेंट्स जो है भी वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो सो यू सी कि बायोटिक इंटरेक्शन में क्या है, हर इंडिविजुअल किसी न किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ में इंटरेक्ट करता है। दैट्स वाई जॉन म्यूर वॉज अ फेमस नेचुरलिस्ट, उसने एक बहुत अच्छी कोट दी थी दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। व्हेन वन टग्स एट अ सिंगल थिंग इन नेचर, ही फाइंड्स इट अटैच्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स कोई भी एक चीज जो है को अगर आप एम करते हैं, देखते हैं, तो वो आप पाएंगे कि वो चीज जो है किसी न किसी तरीके से पूरे दूसरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड के साथ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में वो चीज जुड़ी हुई है। मीन्स हमारी जो है वी कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, हमारी आपस में इंट्रैक्शंस हैं, हर स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ में इंट्रैक्ट करती है। थैंक यू सो मच। Dear students, now as you have already been through the topic biotic interactions, try to find out the answers of few questions. First you are given fill in the blanks. Mutualism is the symbiotic association between dash and roots of higher plants. Next is symbiotic association between roots of higher plants and bacteria is an example of dash.
Roots of leguminous plants may develop dash in which reside soil bacteria rhizobium. Yucca plant depends upon the yucca moth for dash. Dispersal of seeds by animal is called dash. Next is plants which grow on other plants without taking nutrition from them are called dash. Next is liana is example of dash. Next one, a non-obligatory positive interaction where two species are benefited but none of them is absolutely dependent on each other is known as dash. The phenomena in which predators eat up individual of its own species is called dash. Next one is the lid of pitcher in pitcher plant is modified dash. कौन सा part जो है lid में modify हो जाता है pitcher plant में. Next you have to choose the correct option. Your first question is which of the following is carnivorous? You have to choose one answer from these options. Next question is the interaction in which one organism obtains nutrition from other organism partially or completely is called dash. Cuscuta is dash. कौन किस तरह का parasite है? You have to find out the option. Next one is the interaction between two species when both utilize a common resource. तो किस तरह की interaction है जब common resource होता है? Next is the pitcher structure in pitcher plant is modified. कौन सा part pitcher में modify हो जाता है pitcher plant में? Which of the following is a positive interaction? इन चारों में से positive interaction कौन सी है? Next one is अगर आप nutrition देखें तो lianas क्या हैं? Autotroph, heterotroph, chemotroph और none of these. Next question is which of the following is negative interaction? Next one is lichen is example of. इन चारों में से आपने चूज करना है कि लाइकन में किस तरह की एसोसिएशन किस तरह की इंट्रैक्शन होती है. नेक्स्ट वन इज माइकोराइजी इज एसोसिएशन बिटवीन फंगल हाइफी एंड डैश. तो माइकोराइजम में दो पार्टनर है, वन इज फंगल हाइफी, दूसरा कौन सा है? यू हैव टू गिव द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.